اللہ جب تمہاری زندگی سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو فوراً یہ نہ سمجھو کہ تم سے کچھ چھین لیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ایسی چیز سے بچا رہا ہو جو آگے چل کر تمہارے دل کا سکون چھین لیتی۔ کبھی اللہ تمہاری دعا کو فوراً پورا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس وقت تم مانگ رہے ہو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن صحیح وقت آنے پر وہ تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دے سکتا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی مشکلوں سے بھری ہوئی ہے تو ہمت نہ ہارو، کیونکہ اللہ تمہاری ہر مشکل کو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی کا راستہ کہاں سے نکلے گا۔ جس دروازے کو تم بار بار کھولنا چاہتے ہو اور اللہ اسے بند رکھنا چاہتا ہے تو کچھ دیر رک جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس دروازے کے پیچھے تمہارے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک بڑی پریشانی چھپی ہو۔ اللہ کے سامنے مانگی گئی کوئی سچی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کبھی وہ وہی چیز دیتا ہے جو تم مانگتے ہو، اور کبھی اس سے بہتر چیز دے کر تمہیں حیران کر دیتا ہے۔ جب دنیا کے لوگ تمہاری بات نہ سمجھیں تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ تمہارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو تم کسی انسان کو نہیں بتا سکتے۔ اگر تمہاری زندگی میں کسی چیز کو آنے میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں وہ چیز کس وقت ملنی چاہیے تاکہ وہ تمہارے لیے خوشی بنے، بوجھ نہ بن جائے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر بات اور ہر فیصلہ فوراً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو دل اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ مشکل وقت میں بھی سکون کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی اپنے آج کو دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ خاموشی سے تمہارے آنے والے کل کے لیے ایسی چیز تیار کر رہا ہوتا ہے جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہو۔ جب اللہ کسی انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی چیزوں سے زیادہ اپنی یاد کرنے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے، اور یہی خواہش انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے، بلکہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلاؤ کہ اللہ تمہارے ہر آنسو کو دیکھتا ہے اور تمہاری ہر بات سنتا ہے۔ ہر بند راستہ بری بات نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی اللہ ایک راستہ بند کر کے تمہیں دوسرے ایسے راستے کی طرف لے جاتا ہے جہاں تمہارے لیے زیادہ خوشی اور سکون لکھا ہوتا ہے۔ جب تمہاری محنت کا نتیجہ دیر سے ملے تو محنت کرنا مت چھوڑو، کیونکہ اللہ کے یہاں کسی کی سچی محنت ضائع نہیں ہوتی اور صحیح وقت آنے پر اس کا پھل بھی ضرور ملتا ہے۔ اپنے گزرے ہوئے مشکل دنوں کو دیکھ کر خود کو کمزور نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہر مشکل سے نکالا ہے، اور جس اللہ نے آج تک تمہیں سنبھالا ہے وہ آگے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی اللہ تمہیں کچھ لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ ہر انسان ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہو تو اپنی پوری زندگی اس کی غم میں نہ روک دو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے اسے تمہاری زندگی سے اس لیے دور کیا ہو کہ تمہارے لیے آگے کچھ بہتر لکھا ہے۔ جب دعا کرتے وقت دل تھک جائے تب بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ تمہارا اللہ تمہاری آواز سے نہیں بلکہ تمہارے دل کی خاموش بات بھی جانتا ہے۔ جب کوئی مشکل تمہیں بہت بڑی لگے تو ڈرنے کے بجائے اللہ کو یاد کرو،
क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम उस मुश्किल को बर्दाश्त करने की कितनी ताकत रखते हो और वह तुम्हें रास्ता भी दिखा सकता है। अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो शिकायत करने से पहले शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो इंसान छोटी नेमत की कद्र करता है अल्लाह उसके दिल को बड़ी नेमत आने से पहले ही सुकून दे देता है। अल्लाह नेकी करने वालों की नेकी को जाया नहीं करता है, इसलिए किसी के साथ अच्छा सलूक करते वक्त यह न देखो कि सामने वाला तुम्हें क्या देगा, बस यह देखो कि अल्लाह तुम्हारी नेकी को देख रहा है। इंसान की असल खूबसूरती उसके कपड़ों या चेहरों में नहीं बल्कि उसके अखलाक में होती है, क्योंकि अच्छा अखलाक वह खुशबू है जो इंसान के जाने के बाद भी लोगों के दिलों में रहती है। किसी गरीब की मदद करते वक्त उसकी इज्जत को तकलीफ़ न देना, क्योंकि मदद सिर्फ हाथ से चीज़ देने का नाम नहीं बल्कि दूसरों के दिल को बचाने का नाम भी है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले यह सोच लो कि जिन हाथों ने तुम्हें संभाला था आज वही हाथ तुम्हारे नर्म लहजे के हकदार हैं। जो शख्स हर बात में अपनी तारीफ़ चाहता है वह लोगों की ज़बान का मोहताज बन जाता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छा काम करता है उसे लोगों की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं रहती। अपनी ज़बान को काबू में रखना भी एक बड़ी नेकी है, क्योंकि एक सख्त लफ्ज़ इंसान के दिल में बरसों का दर्द छोड़ सकता है, जबकि एक नर्म लफ्ज़ किसी के टूटे हुए दिल को दोबारा हिम्मत दे सकता है। लोगों के साथ इंसाफ करो, क्योंकि अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है, इसलिए अपने दोस्त के हक़ में भी वही बात कहो जो अपने मुखालिफ के हक़ में सच समझते हो। किसी की गलती देखकर फ़ौरन उसे बुरा इंसान न समझो, क्योंकि तुमने उसकी सिर्फ़ एक गलती देखी है, जबकि अल्लाह उसकी पूरी ज़िंदगी, उसका दिल और उसकी नीयत सब जानता है। जो शख्स गुस्से में खामोश रहना सीख लेता है वह बहुत से ऐसे अल्फाज से बच जाता है जिनके लिए बाद में मुआफ़ी मांगने के बावजूद दिल का ज़ख्म फ़ौरन नहीं भरता। बुराई और भलाई बराबर नहीं है। बुराई को अच्छे तरीके से दूर करो। कभी किसी के सख्त बात का नर्म जवाब देना बहस जीतने से ज़्यादा बड़ी कामयाबी होती है। किसी के राज को अपनी ताकत न समझो, क्योंकि जिस राज पर किसी ने तुम पर भरोसा करके पर्दा रखा है उस पर्दे को हटाकर सिर्फ उस शख्स के साथ नहीं बल्कि अपने किरदार के साथ भी नाइंसाफ़ी है। जो शख्स दूसरों की कमज़ोरियों का मजाक बनाता है उसे यह याद रखना चाहिए कि इंसान की अपनी कमज़ोरियां भी लोगों से छुपी नहीं होती, इसलिए किसी को नीचा दिखाने के बजाय उसे सहारा देना सीखो। जब तुम्हें लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो घबराओ नहीं, क्योंकि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का वह रास्ता नहीं रोक सकता जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोला है। कभी यह न सोचो कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी बुलंद आवाज़ नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में छुपी एक छोटी सी ख्वाहिश को भी जानता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वह सिर्फ हमें कोई सबक सिखाने आते हैं, और जब वह सबक पूरा हो जाता है तो अल्लाह उन्हें हमारी राह से दूर कर देता है। अगर अल्लाह ने तुम्हें इंतज़ार दिया है तो अपने दिल में सब्र भी रखो, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली इंतज़ार नहीं देता, क्योंकि उस इंतज़ार के पीछे कोई ना कोई भलाई ज़रूर रखता है। जब कोई रास्ता बार बार मुश्किल हो रहा हो तो सिर्फ रास्ते को बदलने की फ़िक्र ना करो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो कि अगर यह रास्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे इससे बेहतर रास्ता दिखा दे। ज़िंदगी की हर हार को अपनी आखिरी हार न समझो, क्योंकि कभी अल्लाह एक छोटी हार के ज़रिए इंसान को अपनी बड़ी गलती से बचा लेता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी।
अगर किसी चीज़ के लिए तुम्हारा दिल बहुत उदास है लेकिन वह तुम्हें नहीं मिल रहा है तो अपने दिल को समझाओ कि अल्लाह जानता है कि वह चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं, जबकि इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिश को देखता है। अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से एक कदम बढ़ाओ, फिर देखो कि तुम्हारे दिल का डर कैसे कम हो जाता है और मुश्किल वक्त में भी तुम्हें अंदर से एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कहानी ख़त्म हो गई है तो याद रखो कि अल्लाह के पास तुम्हारे किताब की वे पन्ने हैं जो कभी तुमने पढ़े नहीं हैं। इंसान अक्सर उस चीज़ के लिए रोता है जो उसे नहीं मिली, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे समझ आता है कि अल्लाह ने वह चीज़ न देकर उसे एक बड़ी परेशानी से बचा लिया था। कभी कभी जिस चीज़ को तुम अपनी सबसे बड़ी खुशी समझते हो वही तुम्हारे लिए एक बड़ी आजमाइश बन सकती है। इसलिए हर खुशी के साथ अल्लाह से सही रास्ते पर रहने की दुआ करते रहो। अल्लाह की हिकमत यह है कि वह हर चीज़ एक ही वक्त में नहीं देता, क्योंकि अगर इंसान को हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी हो जाए तो वह बहुत सी नेमतों की कद्र करना भूल सकता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आज सुकून कम है तो मायूस न हो, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करो, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की याद बढ़ती है वहाँ मुश्किल वक्त भी पहले जैसा भारी नहीं रहता। किसी इंसान के बदल जाने से यह न समझो कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। कभी अल्लाह दिल बदल कर तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा असल सहारा इंसान नहीं बल्कि अल्लाह खुद है। जब तुम्हें अपनी दुआ का जवाब फ़ौरन न आए तो दुआ छोड़ने के बजाय अपने यकीन को मजबूत करो, क्योंकि अल्लाह कभी जवाब देने से पहले बंदे के दिल को इंतज़ार का सबक सिखाता है। जो चीज़ आज तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे रही है, मुमकिन है कि कुछ साल बाद उसी चीज़ को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसने तुम्हें उस रास्ते पर आगे नहीं जाने दिया। अल्लाह के फ़ैसले पर दिल से राज़ी होना आसान नहीं, लेकिन जब इंसान यह समझ लेता है कि अल्लाह उससे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को जानता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता हर फैसले में भलाई देखने लगता है। जब तुम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश कर चुके हो और फिर भी वह नहीं मिल रही है तो एक बार रुक कर अल्लाह से पूछो कि शायद जिस चीज़ के पीछे हो वह तुम्हारी असल मंजिल ही नहीं है। अल्लाह कभी तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजता। अगर वह तुम्हें वह चीज़ न दे जिसकी तुम दुआ कर रहे हो तो मुमकिन है कि वह तुम्हें किसी आने वाली मुश्किल से बचा रहा हो। जब दिल बहुत उदास हो तो लोगों के सामने बार बार अपनी कहानी सुनाने के बजाय कुछ वक्त अल्लाह के साथ बैठो, क्योंकि वह तुम्हारी बात बग़ैर थके सुनता है और तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। दुनिया तुम्हारी कामयाबी को देखेगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारी कोशिश को देखता है। इसलिए लोगों की तारीफ़ के बजाय अपने रब की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो दूसरों से अपना मुआवजा मत करो, क्योंकि अल्लाह हर इंसान के लिए अलग रास्ता, अलग वक्त और अलग इम्तिहान रखता है। कभी अल्लाह तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम अपने अंदर की आवाज़ सुन सको और यह समझ सको कि तुम्हें हर वक्त लोगों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने रब से मजबूत ताल्लुक़ की ज़रूरत है। जो चीज़ तुम्हारे नसीब में है वह तुम तक पहुँच कर रहेगी, इसलिए किसी की खुशी देखकर अपने नसीब से शिकायत ना करो, क्योंकि अल्लाह हर शख्स के लिए अलग वक्त और अलग हिस्सा रखता है। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सवाल हैं और जवाब कम हैं तो परेशान न हो, क्योंकि अल्लाह से जुड़े रहने वाला इंसान जवाब फ़ौरन नहीं मांगता, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार करना भी सीख जाता है।